Okay. So, introduction to linear transformation. We are learning this whole topic as a revision in this class. Okay. So, we have already learned the linear transformations. Now, from a different perspective or from the same perspective. So, let's look into this. This is Davis and Laybook. Okay. So, matrix equation. They start with a matrix equation. Okay. And what that matrix equation is doing to the vector, we are analyzing this. Okay, so see, if there is a matrix A and there is a given vector, and if we are multiplying this matrix with this vector, what we are getting? We are getting a vector. Okay, all right. Now, can we see some rule in this, or can we define something so that whenever we multiply with this matrix, by this rule, this will happen? So basically this matrix is converting this vector x into another vector b. ठीक है, so x वेक्टर को b वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है this matrix. Similarly u वेक्टर को 0 वेक्टर में कन्वर्ट कर रही है the matrix A. Meaning if we consider all these vectors of order 4 by 1 in one set, and we consider all these vectors which are result of this operation, or we consider any 2 by 1 vectors, all R2 vectors. So you consider the R2 vectors and you consider the R4 vectors and you are getting the R2 vectors. Okay, by multiplying with this matrix. So this is what giving you, this is giving you a rule, and the mapping or the function is nothing but a rule itself. Okay, so that's how we have analyzed this, that this matrix multiplication with a vector is giving us a vector. So is it some rule which we can define? And if it is a rule, and see, when a rule become a function, if every element in the domain has a unique image in codomain, so we know that we can multiply with any vector of order 4 by 1. So R4 का हर एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, सो दैट एवरी पार्ट इज क्लियर ऑफ द फंक्शन. सेकेंड इज जिसकी जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इमेज मिलेगी दैट विल बी यूनिक. सो ऐसा तो नहीं होगा ना ए और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो b1 मिल गया और मैंने मल्टीप्लाई किया तो b2 मिल गया. नो, दिस आंसर इज सेम फॉर एवरीवन, यूनिक आंसर. सो दिस इज द यूनिक इमेज. So the function definition is satisfied. So, and what the vectors are, what is happening to vectors? They are being transformed. Therefore, we are calling that this is a transformation. Okay. So this is how we are looking at this. Okay. So with this thought in mind, we defined a transformation. A transformation is from a set to another set, domain to codomain, that we have already seen, Rn to a range, which could be Rn or which could be Rm. So n could be less than m could be less than n. ठीक है, so आप R2 से R3 में भी जाते हो और R3 से R2 में भी जा सकते हैं. Lower to higher dimension, higher to lower dimension. ठीक है, using different transformations. ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. And similarly we see that मैट्रिक्स से भी वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सो उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. So define a transformation. Okay, they started with the example of defining the transformation via matrix itself. So Tx, R2 से R3, Tx is what? Tx is nothing but multiplying with the matrix A. Okay, so multiplying with the matrix A, all right. So in general, what will be the general transformation? That is, what will be the definition of the transformation? If you have to find out yourself also, तो आप क्या करोगे? You write this matrix A और आप x के प्लेस पे एक वेरिएबल डाल दो, x1 x2 एक वेक्टर डाल दो. ठीक है, वेरिएबल वेक्टर. और फिर इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा दैट विल बिकम द इमेज ऑफ x. तो x1 x2 की इमेज क्या हुई अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T? दिस इज द इमेज.
x1 माइनस 3x2, 3x1 प्लस 5x2 माइनस x1 प्लस 7x2, ठीक है, ये इमेज हो गई। तो आपको इमेज दिया है तो भी आपको मैट्रिक्स निकालना आता है। मैट्रिक्स कैसे निकालते हो आप? R2 के जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, यूनिट एलिमेंट्स है, तो 1 0 और 0 1 दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन दोनों का अगर आप इमेज निकालोगे अंडर द टी तो आपको ए मिल जाएगा। मतलब अगर आपको ये टी दिया होता, ठीक है, अगर आपको ये टी दिया होता तो आप ए कैसे निकालते, जरा करो। 1 0 की इमेज क्या आएगी बताओ? दैट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम। सो 1 0 की इमेज आई 1 3 और -1, और 0 1 की इमेज क्या आई? 0 1 मतलब x1 इज 0, x2 इज 1, सो द इमेज इज -3 5 और 7। ऑल राइट, सो मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स, दिस पार्ट इज already we have covered and we have seen, we are doing just revision. So now the question is, if tx is defined by ax and you have given the three vectors, you have to find out the tu, the image of u under the transformation. Simply you have to do what? a को u और a और u को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फाइंड एन x in R2 whose image under t is b. सो आपको क्या करना है? आपको ये जो आपका ax है, जो कि ये आ रहा है, दिस इज इक्वल टू b, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3 2 और -5, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? ax is equals to b, isn't it? दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इसे सॉल्व करना है, x1 x2 की वैल्यू निकालना है। सो फाइंड एन इमेज ऑफ, फाइंड एन x whose image under t is b। तो ये सेम क्वेश्चन को पूछने का नया तरीका हो गया। आपका पहला तरीका था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, बहुत सारे और आपने तरीके देखे क्वेश्चन पूछने के लिए, और दिस इज अ न्यू वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, that solve the ax is equals to b. Instead of asking that, they are asking what? Find an x whose image under the transformation t, which is equal to a, is b. So you have to solve what? System of equations, right? सी पार्ट में क्या पूछा है? सी पार्ट में पूछा है, इज देयर मोर देन वन एक्स whose image under t is b। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बी पार्ट है उसमें जो आपको एक्स मिला है, ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है? ओके, सो गुड इनफ। आप इसी इसी पार्ट से आपका ये भी हो जाएगा। डी पार्ट क्या बोल रहा है? डी पार्ट बोल रहा है, डिटरमाइन इफ सी इज इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो सी जो है इज इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी का क्या मतलब हुआ? मतलब कोई y है ऐसा जिसको कि t से t इमेज लेने पर आपको c मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक होता है कोडोमेन और उसके अंदर होती है एक रेंज। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच हैज सम प्री इमेज। तो डी पार्ट इज नथिंग बट द बी पार्ट। क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो आप ये सॉल्व एग्जांपल जो है, टेक इट एज अ वेरी गुड क्वेश्चन because two new concepts are given to you of asking the same question, है ना, और सॉल्व है तो पीछे नीचे सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे किया है। पहला वाला पार्ट एज आई टोल्ड यू, ए सिंपल मल्टीप्लाई किया। दूसरे वाले पार्ट में जस्ट डिटरमाइन दैट इक्विलॉन फॉर्म, बिकॉज सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिए, उसकी इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके व्हाट वी फाउंड दैट the rank is 2, rank is 2 and number of variable are 2, so there that means what? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि नीचे की रो 0 है इसलिए रैंक इज, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होता है। आप इसको चाहे कितनी भी रोज दी हो आपको और कितनी भी रोज 0 बन जाए, आप देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 ही थे, इसलिए अगर 2 रैंक आई है इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। 2 से ज्यादा रैंक आ भी नहीं सकती अगर नंबर ऑफ वेरिएबल आर 2, है ना। सो एक नोट आप डाल सकते हो, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर n देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कुड बी मैक्सिमम n से ज्यादा नहीं हो सकती है, चाहे वो m मैट्रिक्स भी हो आपकी, क्योंकि m by n मैट्रिक्स बनेगी ना। सो रैंक कितनी हो सकती है? एट मोस्ट n।
तो ये चाहे 5 हो और ये चाहे 100 हो, बाई कन्वर्टिंग इनटू इकोलॉन फॉर्म, 100 रोज हो 5 कॉलम्स हो, आप इसको इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू अ मैट्रिक्स। मतलब इकोलॉन फॉर्म जो इसका होगा उसमें आपकी 95 रोज जो है वो जीरो बन जाएंगी। ओके, so write this as a note that maximum rank could be the least order of the matrix. Okay, the C part is also, C part says it has a unique solution, so exactly 1, and D part में again वही काम किया हुआ है। और D part में क्या आया, D part में आपका आ गया absurd equation, so no solution case आ गया। ठीक है, rank of A और rank of A is to B, clear? So they have even started the transformation via the matrix itself. ओके, अगेन आपको एक ए दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। सो आपको इसको किसी भी एक्स वाई जेड के लिए इसकी इमेज लेके देखनी होगी और फिर आपको बताना होगा बेसिकली मैट्रिक्स क्या कर रही है। दिस इज गिविंग यू द प्रोजेक्शन, है ना। एक्स वाई और जेड क्या बन रहा है आपका, एक्स और वाई, एक्स ऑन एक्स टू एक्स थ्री इज बिकमिंग एक्स ऑन एक्स टू, मीनिंग द प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, ये लिखा हुआ है एक्स ऑन एक्स टू प्लेन। ओके, द नेक्स्ट इज simple, the matrix is given and you will be asked. So here you are looking at the questions wherein the matrix is given and you are being asked that what this matrix is doing. Again you have to take a simple x and y और फिर उसकी इमेज लेके देखो क्या मिला आपको, x plus 3y and y. So as I have already explained you, this is what shear in x direction of a factor 3. तो एक होता है शेयर में डायरेक्शन, एक होता है फैक्टर, तो एक्स डायरेक्शन में 3 फैक्टर। ठीक है, सो जिस तरह से क्वेश्चन बोला हो, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट विच स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो पॉइंट्स है उसकी इमेज क्या होंगी, या फिर आपको कोई फिगर जो है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट दिस फिगर बट सम रेक्टेंगल और सम ट्रायंगल में बी गिवन टू यू। तो देखो शेयर बेसिकली क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। पहले तो मैंने आपको कहा था ना, जैसे ये भी बड़ा अच्छे से एग्जांपल दिया, मैंने आपको दिया था कि कार्डबोर्ड का आपका बॉक्स है अगर, और उसको आप चपटा कर रहे हो, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे प्रेस कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट हैपनिंग। अब यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ एन इमेज, व्हाट विल हैपन टू दैट इमेज एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन दिस दैट अ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इट डज, सेम रखता है एक साइड से, दूसरे साइड से उसको फ्लैटन कर देता है। ओके, so after defining all this, now comes the linear transformation. Linear transformation definition is says that the vector addition it will get distributed and the scalar multiplication it will get distributed. So t of uv equal to tu plus tv and t of cu equals to ctu. Okay, where u and v are the vectors in the domain of t and c is the scalar or a real number. For your case it will be mostly real number. ठीक है, अभी आपके इसमें कॉम्प्लेक्स तो आएंगे नहीं, but the definition says it could be any scalar, a single number, and then u is in the domain of t. ठीक है, so sometimes this may be a question that t0 equal to 0, prove this. So you can use your second definition of the linear transformation, that the zero vector ko we can write 0 into 0, so it is 0 times 0. ये जीरो जो है आपका वेक्टर है और ये जीरो जो है एक स्केलर है ना। दिस जीरो वेक्टर कुड बी व्हाट, और दिस कुड बी एनी वेक्टर। ओके, सो यू कैन से दैट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू 0 टाइम्स एनी वेक्टर। तो एनी एक्स वाई जेड आपने ले लिया, उसमें अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0। अब टी ऑफ 0x तो 0 सी अगर है आपका 0 तो सी तो बाहर निकल जाता है, तो 0 टाइम्स टी ऑफ एक्स। अब टी ऑफ एक्स कुछ भी हो बट 0 मल्टीप्लाई करने पे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलता है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रूव इट इन 2 लाइन्स। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके इसमें बनता नहीं है बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बट स्टिल एज अ लॉजिक यू शुड नो कि हाँ जीरो की जो इमेज है वो दैट विल बी जीरो इटसेल्फ। ओके, एनीवे,
Next, see the dilation is given. Dilation we already know, no need to see this. What dilation is doing. So अगर आपको ये सब वेक्टर्स का नाम दे दिया या आपको ये फिगर दे दिया, इसका डायलेशन का क्या इफेक्ट होगा, तो आप बोलोगे एवरी वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड विथ डायलेशन फैक्टर. डायलेशन फैक्टर कितना है, अगर आपका 3 है तो ये सब कुछ 3 3 3 आगे बढ़ जाएंगे. तो अगर सपोज ये आपका भी 1 1 था, तो 1 से आपका क्या हो जाएगा 2 और 3. तो एक स्केल बना लेना, ठीक है. ओके, देन 0 -1 और 1 0. ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, -x2 और x1 कर रहा है ये. दिस इज रोटेशन. काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, नो, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री है. तो आपने रोटेशन पढ़ा हुआ है, रोटेशन वाले में आप देख सकते हो ये. अब आपसे अभी तो ये पूछा हुआ है सिंपली दैट फाइंड द इमेज ऑफ u v और u प्लस v. एनीवे ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. और क्या हो रहा है फिर क्या है, यहाँ की सारी आप देख सकते हो. ये इस थोड़े से स्पेशल टाइप ऑफ, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें काम वही करना है, तो पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया है, ठीक है. सो टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड फाइंड द वेक्टर हुज इमेज अंडर टी इज बी. मतलब आपको ए दिया और बी दिया और आपको क्या करना है, आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी करना है और ये भी बताना है इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट इज यूनिक और नॉट. तो अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस पूरा यूनिट जो है दैट इज बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट टॉपिक. I told you in the starting as well, I am telling you in the end as well. Okay, so ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी के सारे questions you can do. Now see next type of questions. So this question, it is interesting और I think इस टाइप का एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा था. It could be only 1 mark question but a very good question. So आप देखो, अगर जब भी डाउट हो आप क्या करो, R2 से R3, R3 से R2 में एक मैपिंग डिफाइन कर लो. प्रोजेक्शन है आपके पास, सबसे सिंपल सा है ना. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझो और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या आपको बता रही हूँ. जब भी इस तरह के किसी क्वेश्चन में आप फंसो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप उस क्वेश्चन से इसको एनालाइज करो जो आपको पता है. ओके, उसमें जो चीज ट्रू है वो ये भी यहाँ भी ट्रू हो जाएगी. जैसे क्या बोला है आपको, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6/5. 6/5 मतलब 6 रोज और 5 कॉलम्स. What must be A and D in order to define the T so that Tx is equals to Ax. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि डोमेन और को डोमेन का जो है ना वो ऑर्डर कितना होगा, ठीक है. सो ये A और B 5 और 6 होगा या 6 और 5 होगा, यही है ना डाउट. R6 से R5 में मैपिंग जा रही है या R5 से R6 में मैपिंग जा रही है, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऐसे ही होगा. तो आप देखो एक 6/5 मैट्रिक्स जो है किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है, 5/1 से ही तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना, है ना. ए और एक्स कर रहे हो आप, ठीक है. तो 6/5 मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगी, 5/1 से. मतलब जो डोमेन है वो कितना होना चाहिए, R5. तो ए क्या होना चाहिए, 5. ओके, और जो रिजल्ट होगा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्या मिलेगा, 6/1. तो बी कितना होना चाहिए, 6. तो एक तो आपको यहां से पता चल जाएगा सिंपली बाय टेकिंग अ वेक्टर दैट दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 6. एक और तरीका है, अगर ये भी ना समझ में आए तो आप करो R3 से R2 वाला प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है. x1 x2 और x3 गोइंग टू x1 x2, ठीक है. अब आप देखो कि इसमें जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बनेगी. तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी ये देखने के लिए आप इसमें 1 0 0 की इमेज लोगे, है ना. सो दैट विल बी 1 0 0 1 0 की इमेज लोगे तो दैट विल बी 0 1 और 0 0 1 की इमेज लोगे तो 0 0. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया, 3/2.
तो मतलब अगर यहाँ पर 3 होता है तो 3 पहले आता है, 2 होता है तो 2 बाद में आता है, मतलब डोमेन जो है वो पहले आता है, कोडोमेन का बाद में आता है ना। वी डिड समथिंग। हाँ, दिस इज 2/3 ना, आप भी नहीं बोल रहे हो, दिस 2/3 ना, 2 rows और 3 columns, 2 rows और 3 columns, 2/3। तो डोमेन का कहाँ आ रहा है आपका, डोमेन आ रहा है आपका यहाँ पर, है ना। अगर आपका डोमेन और को डोमेन है ऑर्डर, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है, रिवर्स होता है, 2/3। ओके, अब इसको चाहे रटना हो रट लो, बट आई विल सजेस्ट कि इसको एज ए कंसेप्ट याद करो कि क्या हो रहा है, और आप फिर कोई भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ, है ना। नॉट जस्ट कि अभी एग्जाम के लिए इसको रट लिया और समझ लिया है। सो अब जैसे ये है आपका R4 से R5 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 5/4, है ना। तभी तो 4/1 से मल्टीप्लाई करके आप 5/1 में जाओगे। ओके, चलो, एनीवे, a very insignificant topic from exam point of view, but otherwise a good understanding. Okay, फिर क्या बोला है आपसे, find all the x in R4 that are mapped into zero vector। अब ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, फाइंड ऑल द x इन R4, तो मैपिंग जो है वो R4 में है, ठीक है, दैट आर मैप्ड टू जीरो वेक्टर, मतलब अगर ए एक्स करोगे आप तो आपको 0 मिले, मतलब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है उसमें होमोजेनस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला पार्ट है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी सारी सॉल्यूशंस निकालना है जो कि सॉल्यूशंस जो हैं ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या दे रहे हैं आपको, 0। सो इसका सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, एज यू ऑल नो that x is equals to 0 is always a solution, you have to find out whether there is some other solution, और अगर अदर सॉल्यूशन है तो फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से, क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड ऑल एक्स इन R4, तो R4 के वो सारे एलिमेंट्स आपको निकालना है दैट आर मेप्ड इनटू जीरो वेक्टर, मतलब वो सारे एलिमेंट्स R4 के जिनकी जो इमेज है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसा एक वेक्टर तो आपको पता है, एक 0 तो है ही है, उसके अलावा क्या कोई और है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग द होमोजेनस इक्वेशन, चाहे तो भी लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, अब 10 में